Hello students. So today you had your mathematics paper for the NDA 2 2019. काफी बच्चों ने दिया होगा. You might have seen a huge rush this time. I think the number of absent candidates were less this time because चंडीगढ़ में सेंटर्स पे काफी भीड़ देखने को मिली. Someone reported from Shimla center as well. वहाँ भी करीब 40-50% के बीच में अटेंडेंस थी. पहले ऐसा नहीं हुआ करता था. That means the charm of NDA has increased. Of course, सरकारी नौकरी का चार्म आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है. It's a general trend in each and every exam. Okay. Anyways, so in this video we will be talking about the topics in which the maths question paper were framed. तो जो आज आपने पेपर दिया, उसमें maths में कौन से topics से कितने question आए, and what is the general trend? मतलब was it different from the previous one, or there is something new which has to be observed? Right? So we'll try to analyze. Cut off वगैरह हम अगले videos में discuss करेंगे when we solve the paper. Okay, so let's start with this. So when we talk about algebra, basically मैं इन topics की बात कर रहा हूँ, set relations and function. So there were 6 questions from sets and 9 from the function. That means it was a huge number. 15 question यानी कि आपके पास 15.2.5 question marks budget आपका ज़्यादा था. There was no question from relation. तो set function से आपके 15 question आए. तो अगर आपका इन topic strong होगा, तो आप इसमें से 8-9 question आराम से कर सकते थे. Next, when you talk about the next unit, that is stats and probability, इससे भी आप देख सकते हैं 19 क्वेश्चन. मतलब वॉल्यूमिनस नंबर है स्टैट्स, और स्टैट्स के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इजी थे. तो 19 क्वेश्चन अपने आप में बहुत मायने रखता है. राइट, यू कुड हैव इजीली डन, इसमें से 11 to 12 would have been easily done by you. Right, so ये दोनों मिला करके it's around 35 question on an average which has been from set relation function, stats and probability. छोटे से यूनिट्स हैं, but you can see that there is 35 question from this unit. If you have done behind the scene work, you will have done good in this section. Next, trigo related question. Trigonometry was 14, right? तो 14 क्वेश्चन आपके ट्रिगोनोमेट्री से आए थे. अगेन ये अच्छा खासा नंबर है. वैसे भी एनडीए में ट्रिगो के क्वेश्चन काफी आते रहते हैं पहले. राइट, नेक्स्ट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट. आप कहीं भी पढ़ते हो या खुद से भी पढ़ते होगे, तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपने बहुत अच्छे से किया होगा बिकॉज इट्स अ जनरल ट्रेंड कि एनडीए में 7-8 क्वेश्चन होते थे. दिस टाइम आल्सो देयर वर 6 क्वेश्चन फ्रॉम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट. तो आई होप उसमें एक दो डायरेक्ट वन थे, आप एनसीईआरटी से भी मिला सकते हैं उसको. डिफरेंशियल कैलकुलस, सो 3 क्वेश्चन लिमिट्स कंटिन्यूटी से, बाकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन से, दैट इज 4. टोटल देयर वर 7 क्वेश्चन फ्रॉम दैट. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंटीग्रल कैलकुलस. तो ये पोर्शन ज्यादातर मुझे लगता है बच्चा लास्ट में थोड़ा क्विट कर देता है, बट द इंटीग्रेशन फार्मूला बेस्ड हो गया या लिमिट्स, वो सॉरी डिफरेंट इंटीग्रेशन हो गया, उससे 6 थे. देन एरिया अंडर कर्व with 2, डिफरेंशियल इक्वेशन 3. So overall there was 11. So you can see that the weightage of integral calculus was more this time in terms of in comparison to the differential. तो ये अगर आपने नहीं किया होगा अच्छे से तो आपको थोड़ी दिक्कत आई होगी. Combination with 3, number system और binary numbers, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे. There were 3 question from that. While the complex number, इस बार कम क्वेश्चन थे complex के. So there are only 2 questions of the complex, while binomial is 3. Right. Next we move to the linear equation and quadratic. Quadratic से आपके 8 क्वेश्चन थे. That means के ह्यूज वेटेज, काफी अच्छा खासा वेटेज था क्वाड्रेटिक का पेपर में. And I'm sure कि 99% जनता जो मैथ्स के लिए सीरियस होती है वो क्वाड्रेटिक अच्छे से करती है. So there were total 12 question. Sequence series के 7 question थे, although they were I think easy in nature. Right. लॉगरिथम के एक क्वेश्चन था, सिलेबस में था तो एक क्वेश्चन दे दिया होगा, बट जनरली एक से ज्यादा होता है. Vectors 3D, there were 10 questions. Now this is again one of the easy portion. In fact, वेक्टर में एक दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते थे आंसर, बिकॉज़ रटा क्वेश्चन है, आपको हर किताब में मिल जाएगी. राइट. नेक्स्ट, the coordinate geometry. Now this time I think the coordinate geometry was little tougher comparatively. I am not saying coordinate is tough. Coordinate is one of the easiest part of mathematics. अगर आपने ऐसे लोनी वगैरह बुक लगाई है फिर तो आपके लिए लेफ्ट हैंड टास्क है, बाएं हाथ का काम है. इट्स अ केक वॉक. बट फॉर दोस जो ज्यादा इसको टच नहीं करते उनके लिए, मतलब कंपैरेटिवली एज कंपेयर्ड टू द एनडीए पेपर, एनडीए में कोऑर्डिनेट वैसे भी इजी आती थी. सो आई थिंक कंपैरेटिवली कोऑर्डिनेट माइट बी टफ फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स. राइट. मुझे तो टीचर होने के नाते यही कहना है कि इट वाज इजी बिकॉज़ आप अच्छे रेफरेंस बुक से देखोगे तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन. एनडीए मैथ्स क्वेश्चन स्टैंड्स नोवेयर इन कंपैरिजन टू जेईई और अ गुड स्टैंडर्ड एग्जाम. राइट. बट एनडीए को बहुत मैथमेटिक्स का चैंपियन तो चाहिए नहीं ना. राइट. दे वांट कि आपको एक बेसिक चीजें पता हो, बाकी वो आपको ट्रेन करेंगे. एनीवेज,
तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप ये सुनने में इंटरेस्टेड होंगे, was the paper easy this time or tougher or the same pattern as that of previous? So now I would like to say what our faculty say, of course the mathematics teacher version, that paper was on easier note this time in comparison to NTA 1 2019. इस बार NTA 2 2019 का जो मैथ्स का पेपर था वो इजी था पिछले बार की अपेक्षा में, राइट? इसका मतलब कि बच्चों ने ज्यादा अटेम्प्ट किया होगा, और सेंटर के बाहर, कुछ सेंटर पे जो बच्चे बाहर आए थे कुछ पे अलाउड नहीं था. When we talk, when we interacted, right, they conveyed that कि you know it's around 60 to 70 attempt average बच्चों का. तो जो अच्छे बच्चों को 80-85 के आसपास अटेम्प्ट जरूर किया हुआ उन्होंने, because कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपको आराम से एग्जाम में भी देखा हुआ मिला होगा, आई एम श्योर अबाउट दिस, राइट? सो द एवरेज अटेम्प्ट आई थिंक वाज 65 टू 72, मतलब एवरेज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस हु आर प्लानिंग 200 के 180 वाले बच्चे, जो 80% क्राउड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि 65, 60, 70 के आसपास उन्होंने अटेम्प्ट किया, जिन भी बच्चों से हमने बात की, right? We will be coming up with the expected cutoff as well as the solution of this mathematics paper in the next video. Thank you. Hope you had a good exam. All the best for the GS paper.